of 4 regions, regional associations, as well as all the hotels and restaurants in the entire country. As far as hospitality is concerned, sir, our country has about 53,000 hotels and about 7 lakh rooms and about 7.5 million restaurants, translating into about 80 million covers. As far as the turnover of the industry is concerned, we are really proud to say that the hospitality industry covers about 10%, 9.8% of the GDP of the country, ranging to about $275 billion. And our industry is a highly labor-intensive industry. We offer direct and indirect employment to about 45 million employees. Okay, This was yeah, which Minister was will start, right? the COVID area. Sorry, Himanshu? Minister will start, yeah. Sorry. Minister will speak now. I think I just got a call Yeah. from his office. Okay. Gogi, you can invite the minister to come. Yes. Namaskar, Nitinji. Welcome to the interaction between the hotel and restaurants and yourself. And a very, very warm welcome to you, sir. Just a brief, I will just take a minute to introduce you, sir. Just allow me that much. Nitinji Gadkari needs no introduction. He's been holding various portfolios of consequence in the government, each time rising to the occasion and turning them immensely value added. Sir, our meetings may have become virtual, but our feelings and respect towards you is real time. Firstly, thank you for modifying the definition of MSMEs to now include the hospitality industry. We are delighted that at least someone from the government also thinks we are important enough, and to other too. The loans have started coming in, sir, and some have already also availed of these loans. So we thank you very much. We see you, sir, as a coordinating factor between the industry and the government. We also know you as one who removes roadblocks and creates roadmaps. At present, we need the much needed oxygen of support to prevent the industry from certain death and boost our condition from survival to revival. Pradeep ji has just given you a little figure, sir. We have certain issues which our panelists will take up, so I will not reiterate those issues like uh, cash flow, migratory labor, statutory payments, etc., etc. Sir, you had mentioned that the Union government had advised the state governments to mandatorily or push back all licenses and all such permissions to 6 months at least. We some of them are not happening, sir. We would request that you once again on our behalf just mention that this happens so that it will give us the much needed support. Sir, the devastating impact is that the future survival of establishments is at risk since they do not have any alternative source of livelihood. It is estimated that more than 35% are on the verge of permanent shutdown, and you will appreciate that while it is important to save lives, we also need to save livelihood as well. So the maxim Nanak Dukhya Sab Sansar is really fits the bill here. We have not only come with unique problems, sir, but also with solutions. We agree and we appreciate your intervention in this, and we look forward to it, sir. So the only genuine differentiating factor between a service industry and a manufacturing industry is should be looked at a little differently. Room nights and table bookings are the most perishable commodity. It is not like a manufacturing sector where we can manufacture something and after 3, 4, 5 months we can again sell it. So one day is gone, it is 100. This is gone. We need to look at this industry a little different from the manufacturing industry. Deferring interest, therefore, sir, does not work because this is like we are being forced to shut down and paying rent in August for April, even though the landlord never allowed us to use the premises in April. Sir, with this, I will just say that we are a very resilient bunch, and we look forward to this lockdown being lifted. I think the word social distancing is taken very wrongly. Man is a social animal, and whatever you do,
lift of lockdown, man will continue to look at a quality and live experience as distinguished from the lockdown computer generated e-mode. Sir, I believe people will still continue to work from home, and we believe as an industry that we should look forward to it positively rather than always point out the negative issues. And that is why, sir, we have reached to you because we know you are a friend of the industry and you have immense knowledge of this industry. So, with that, sir, I welcome you once again and I request the Honorable Minister to address this gathering. Thank you, sir. सर नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोग किस कठिनाई से गुजर रहे हैं इसका मैं अनुभव कर सकता हूं, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे सामने ही होटल है रेडिसन नागपुर में, और पूरा होटल बंद है। वैसे सभी होटल्स बंद हैं, तो रोज़ मैं उठता हूं और बेडरूम से देखता हूं तो मुझे रोज़ देखता हूं कि ये सब कैसे होगा। तो आप सब लोग किस प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो मैं ये समझ सकता हूँ। ये हमारे देश पर ही संकट नहीं है, पूरे विश्व पर है, पर वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। और इसलिए अभी काफ़ी बातों को लॉकडाउन करना और बंद करना ये एक इतने दिनों तक भी संभव नहीं है। तो धीरे धीरे कोरोना के बारे में स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसको अपनाकर धीरे धीरे इसको शुरू करने के बिना कोई पर्याय भी नहीं है, और सरकार भी धीरे धीरे परमिशन भी दे रही है। पर हमें चिंता करनी पड़ेगी कि इससे कोरोना का और ज़्यादा फैलाव ना हो, अदरवाइज़ उसके कारण नई समस्याएं खड़ी होगी। देश के टोटल जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का 16% कंट्रीब्यूशन है और करीब 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और करीब 54% से 56% सर्विस सेक्टर का है। और हमारे देश में सर्विस सेक्टर में आपकी इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है और इसमें और पोटेंशियल भी है। जैसे मैं देखता हूँ कि इसके साथ रेस्टोरेंट है, होटल्स है। रेस्टोरेंट से रिलेटेड अभी रोड साइड एमिनिटीज़ हम खोल रहे हैं रोड पर 2000 पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट होटल्स हमारे नेशनल हाईवे पर ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। तो हर जगह पर काफ़ी पोटेंशियल है। और इसके साथ साथ जहाँ भी हम लोग टूरिज़्म डेवलप करना चाहते हैं वहाँ टूरिज़्म के साथ होटल इंडस्ट्री में जैसे रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, टैक्सी होगी, टैक्सीज़ के साथ साथ वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ बातें होगी। अभी आजकल जैसे वाटर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, अलग अलग प्रकार की, उसका भी बहुत ये है। अभी रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे में हमने अभी मेरे डिपार्टमेंट को हमने कैबिनेट को भेजा है कि इसको मैंडेट हमको दे, क्योंकि हम कुछ जगह रोड के बजाय इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हर जगह पर रेस्टोरेंट, होटल्स तैयार होंगे। और आपने बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी आप लोगों ने खड़ा किया है। दो चीज़ों में इसका डिपेंड है कि आखिर लोगों की पेइंग कैपेसिटी और आप देते जो फैसिलिटी दे रहे हैं उसका कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा। बड़े प्रमाण पर लोग अभी टूरिज़्म के लिए बाहर निकल रहे, अच्छे रोड बनेंगे, अपनी गाड़ियाँ लोगों ने ली है तो बड़े प्रमाण पर लोग बाहर निकल रहे हैं। हमें अच्छे रिसोर्ट्स, अच्छा क्लीननेस जो विशेष रूप से फॉरेन कंट्रीज़ में, और वहाँ से रिलेटेड ऐसी बहुत सी बातों का विकास भी उसके साथ हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स वहाँ का जो होगा वो भी पॉपुलर बनता है। तो आप सब लोग इसके एक्सपर्ट ही है। एक बात ज़रूरी है कि इंडस्ट्री को इस समय ये जो 3-4 महीने चले गए हैं इसमें काफ़ी लॉस आपको हुआ है और ये मैं समझ भी रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। और इसलिए जल्दी इसमें से बाहर निकलना, और कम से कम प्रॉफिट भी नहीं मिला तो एक्सपेंडिचर तो कम से कम निकलना चाहिए। अभी जैसे इलेक्ट्रिक का मिनिमम बिल आता है तो लोग कहते हैं कि ये बिल माफ़ कर दो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सभी लाइसेंसेस और जो कुछ परमिशंस थी लगभग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 6 महीने तक कुछ जगह बढ़ा के दिया है
कहीं नहीं होगा जो आप बता रहे तो मुझे बताइए, मैं फिर से उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपके स्टेट में भी बढ़ाइए करके। होटल इंडस्ट्री का और आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें मैं कोई डायरेक्टली एकदम बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोऑपरेशन के बारे में आजकल बहुत सी अड़चनें पैदा हुई है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने टाटा है, लेलैंड है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनी के जो बड़े जायंट्स हैं उन्होंने अपनी खुद की एनबीएफसी खड़ी की है और उनकी एनबीएफसी उनको वो अभी फाइनेंस देते हैं, तो उसके कारण उनका बिजनेस भी बढ़ता है और उसमें एनबीएफसी से कुछ पैसा भी मिलता है। और अभी एनबीएफसी को हमने 75,000 करोड़ रुपए दिए, 40,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल और 35,000 करोड़ इक्विटी के लिए, तो एनबीएफसी भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम कर रही है। दूसरा, मुझे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए कैसे संभव होगा। आप देखिए, हमारे जेएनपीटी पोर्ट में हमारा हर साल 500 करोड़ टर्नओवर डॉलर में होता है, तो हम लोग पनवेल से लेकर जेएनपीटी तक एक सीमेंट कंक्रीट रोड अभी बन गया, पूरा तैयार हो गया, तो ये 2,500-3 हज़ार करोड़ का रोड था, ये बना रहे थे। तो ये बीओटी में था, तो इसके लिए कर्जा हमने आईसीआईसीआई बैंक से लिया था, तो उनका इंटरेस्ट 11% था। तो मैंने हमारे चेयरमैन को कहा कि आपका टर्नओवर 500 करोड़ हर साल डॉलर में होता ही है, तो आप लोन डॉलर में क्यों नहीं लेते हैं, आप रुपीज़ में क्यों लेते हो। तो उन्होंने कहा ये मिल सकता है, मतलब बिल्कुल मिल सकता है। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा हम लोन देंगे पर लाइबोर प्लस 2% लेंगे। तो मैंने चेयरमैन को कहा कि आप एक टेंडर निकाल दो, देखो क्या होता है। तो स्टेट बैंक कैपिटल और डीबीएस बैंक सिंगापुर आई और उन्हें 2.25% पे हमको पैसा दिया डॉलर में। अब 11% कहाँ, 2.25% का। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग, आपके होटल में फॉरेन से डेलीगेट आते हैं, लोग आते हैं, विवेक जी के यहाँ भी आते हैं, लीला में, सभी जगह आती होंगे, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ कहीं ना कहीं आती है। आप डॉलर पेमेंट अगर लेंगे और आपका मिनिमम डॉलर पेमेंट अगर होता, तो ये तो फॉरेन एक्सचेंज का अर्निंग है देश के लिए। तो एक्सिम बैंक और बाकी कोई फॉरेन बैंकों से आप अगर डॉलर में टर्नओवर है तो ये डॉलर में कुछ लोन ले सकते हैं क्या, क्योंकि डॉलर की जो लोन की कॉस्ट है वो 3% से कम आएगी, 2-2.25% पे आएगी, और आपको डॉलर में वापस करना होगा। जिसका डॉलर में टर्नओवर है उसके लिए ये आसानी हो सकती है, ऐसा मेरा मत है। तो आज के हमारे बैंकों के रेट के इसमें आप ये फॉरेन लोन के बारे में कुछ ज़रूर कोशिश करिए, इससे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी जिनका डॉलर में टर्नओवर है। हाँ, जो डॉलर में लोन लेंगे और जिनका 100% रुपीज़ में है उनके लिए मुश्किलें हैं। दूसरी बात ये जो है कि आप ये अपनी भी कोई एनबीएफसी होटल इंडस्ट्री की क्यों नहीं खोलते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मत है, सरकार में इसको कन्विंस करने में कठिनाई जाएगी कि धीरे धीरे फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम प्राइवेट बैंक, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी जैसी अगर प्रयोग फॉरेन में सक्सेसफुल है तो इनके बारे में सोचना चाहिए। ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं व्यक्तिगत इस मत का हूँ कि हर इंडस्ट्री अपने लिए ऐसा कोई फाइनेंशियल अच्छा सोर्स तैयार करती है तो आपका ही डिपॉजिट वहाँ चला जाएगा। अभी एक समय अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का महाराष्ट्र और गुजरात में काम शुरू हुआ, अब 3.5-4 लाख करोड़ का डिपॉजिट उनके पास है। और ये कोऑपरेटिव बैंक का जैसे सारस्वत बैंक है या कॉस्मस बैंक, बड़े बड़े बैंक कितना फाइनेंस कर रही है, अनेक जगह पर अच्छी तरीके से कर रही है। तो आपके ही लोगों के डिपॉजिट आपके पास रखना, आपके कर्मचारियों के भी अकाउंट आपके एनबीएफसी में रखना, और अभी एनबीएफसी भी हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने तो अभी कहा है कि एनबीएफसी को हम फॉरेन लोन के साथ टाइप कर सकते हैं क्या। तो एनबीएफसी अगर फॉरेन लोन अपनी बैंक, और बैंकों में कहने में सरकारी सेक्टर में काफ़ी उसमें प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, पर प्राइवेट इसमें अगर एनबीएफसी फॉरेन से अगर कोई फंड लाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी कम है। दूसरी बात जो मुझे आपको कहनी है कि हमने अभी एक 50,000 करोड़ का फंड तैयार किया है, वो फंड ऑफ फंड है जिसका इनकम टैक्स का टर्नओवर अच्छा है,
जीएसटी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक टर्नओवर अच्छा है, और इसमें अगर फॉरेन एक्सचेंज का भी आता है तो अच्छा होगा। तो ये सब रिकॉर्ड देखकर हम आपका एक सिंप्लीफिकेशन के मेथोडोलॉजी से आपका रेटिंग कर देंगे। और ये 50,000 करोड़ फंड ऑफ फंड है। हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको हम उसमें आपके कैपिटल में 15 करोड़ तक इक्विटी हम देंगे, और हम आप में इक्विटी ऐड करके फिर आप कैपिटल मार्केट जाएंगे और कैपिटल मार्केट से आप फंड रेज करोगे। तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस शीट में आपको कैपिटल मार्केट से फंड मिल सकता है। मेरी एक कॉन्फ्रेंस दुबई के इन्वेस्टर के साथ हुई, 5-6 हज़ार लोग थे, फिर अमेरिका वालों 10-1 हज़ार इन्वेस्टर थे, उनके साथ भी हुई। तो मैंने उनको कहा कि ये छोटे छोटे एमएसएमई में आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो धीरे धीरे हम लोग फाइनेंस के लिए नए कोई मार्ग निकाल सकते हैं क्या, ढूंढ सकते हैं क्या, उसका आप ज़रूर विचार करिए। ये आपकी बात जो है कि अभी हमने जो निकाली थी स्कीम कि 3 लाख करोड़ दिए हैं एमएसएमई को, जिसमें उनका जो मिनिमम टर्नओवर 100 करोड़ के अंदर और टर्म लोन 25 करोड़ के अंदर होगा, उनको हम 20% कोलैटरल फ्री लोन देंगे। और उसमें काफ़ी इफ एंड बट्स लगे नीचे में। तो हमारी कल्पना ये थी कि डायरेक्ट अगर जितना वर्किंग कैपिटल है उसमें 20% ऐड हो, और इसलिए मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा है कि इसके बारे में बैंकों ने डायरेक्ट उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कोलैटरल फ्री लोन दिया है, उसकी गारंटी सरकार ने ली है। हमारा उसका लोन को हमने इंश्योर किया है, इंश्योर ट्रस्ट में पैसा भर के हमने बैंकों को कहा है, तो वो डायरेक्ट 20% दे। अब उसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। मार्केट में लिक्विडिटी आए बिना डिमांड एंड सप्लाई का गतिशीलता नहीं आएगी और इकोनॉमी का चक्र गतिशील नहीं घूमेगा। तो हमारे तरफ से ये बात हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड की, हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुमति मिलने के बाद इसमें ज़रूर सुधार होगा। दूसरा, हमने 20,000 करोड़ की प्रोविज़न की है कि विशेष रूप की आज के प्रेजेंट पॉलिसी में जो लोग हैं जिन्होंने अकाउंट एनपीए हो गए हैं और जो इसमें आज रिस्ट्रक्चर करने में बैंक को अड़चन आ रही है, तो हम उनमें अपनी इक्विटी खरीदी करेंगे ताकि बैंक उनको रिस्ट्रक्चर करने में एग्जिस्टिंग स्कीम में बिठाकर उसका रिस्ट्रक्चरिंग कर सकेंगी। इसके भी नियम हमने कल परसों ही तैयार हुए, हम रिलीज़ कर रहे हैं। आप में से जो स्ट्रेस एसेट है जो एनपीए में चले गए हैं, वो बाहर आने के लिए, इसके लिए अगर ये फंड का उपयोग करते हैं तो ये योजना के लिए हम ज़रूर आपको मदद करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और यही है कि अभी धीरे धीरे काफ़ी सेक्टर शुरू हो गए हैं, पर अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये है कि उन्होंने होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ राज्यों ने निर्णय किया, कुछ राज्यों ने नहीं किया है। पर इसके बारे में निश्चित रूप से मैं भी कोशिश करूँगा, होम मिनिस्ट्री को भी कहूँगा कि इसका नियमों का पालन करते हुए 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। अब अपने एक रेस्टोरेंट में अगर 10 टेबल है तो एक समय 5 ही टेबल का यूज़ करें और 2 टेबल में बैठे हुए लोगों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करें, ताकि किचन में सब जगह पर आपके स्टाफ भी करें, मास्क लगाए, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें, होटल में जाते आते समय सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो ये बातों को रखकर हमने इसका कुछ ना कुछ थोड़ा मार्ग ढूंढना चाहिए, ऐसी कोशिश मैं अपने तरफ से भी कर रहा हूँ। आप भी अपने तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री जी को और उनको कहिए कि भाई इसमें आपके रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइन देकर आप हमको चालू करने की अनुमति दीजिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत धंधा शुरू होगा। अभी रेस्टोरेंट शुरू हुए, एयरलाइन शुरू हुई, पर लोगों का रिस्पांस उतना नहीं मिला। रेस्टोरेंट शुरू होने के बाद एकदम नहीं मिल पाएगा, उसको टाइम होगा। पर एक रेस्टोरेंट में आपने अगर उनको टेलीफोन पर बुक किया कि 1 घंटे में उतने लोग आएंगे, उसके दूसरे में टाइम देंगे हर को, तो स्लॉट होगा, तो वो रेस्टोरेंट में उस प्रकार से लोग भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ, अभी आइदर वी लाइक इट मे नॉट लाइक इट, बट वी नीड टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। ये कोविड-19 के साथ जीने के लिए हमको कुछ मार्ग भी निकालने होंगे, वो निकाले बिना कोई पर्याय भी नहीं है, और हमें हमारी रोजी रोटी भी चलानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप में, सरकार आपके साथ है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के नाते, और भी हम आपको क्या मदद कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए। हमने एक चैम्पियन करके हमारा वेब पोर्टल है,
उसमें बैंक से, हमारे विभागों से कई अड़चन आती है तो आप ज़रूर उसमें डालिए। उसका खुद मॉनिटरिंग मैं भी करता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम मेरे भी ध्यान में आएंगे तो हम पूरी मदद आपको करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी ये संकट तो बहुत कठिन है, गंभीर है, पर इसके पहले भी 47 के पहले और बाद में हमारे देश ने और हमारे समाज ने बहुत संकटों का सामना किया है और हम उसमें यशस्वी हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके कारण भयभीत होना, डर, फियर, निगेटिविटी, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, इससे तो कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ये बहुत आवश्यक है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इसका प्रतिकार करना भी आवश्यक है। मुझे मालूम है कि ये बोलना आसान है, पर आप जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उसको किस कठिनाई से गुजर रहे हैं, ये मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे लगता है इससे भी हम निकल जाएंगे। हम निश्चित रूप से कोविड-19 की लड़ाई भी जीतेंगे और इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे। कुछ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी हमारे लिए है और आने वाले कुछ एक्सपर्ट ने ये किया है कि इसके बाद के समय में हमारा जीडीपी ग्रोथ काफ़ी बड़ा होगा, तो स्वाभाविक रूप से आप सबको इसका फ़ायदा भी होगा। पर निश्चित रूप से एक्सपेंडिचर कॉस्ट को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना और निश्चित रूप से इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाना और नए नए इनोवेशंस के साथ हमारे बिजनेस का विस्तार भी करना, तो मुझे लगता है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आवश्यकता है। सरकार इंटेंशन से ये चाहती है कि हम इंडस्ट्री को, सर्विस सेक्टर को, हॉस्पिटलिटी को, टूरिज़्म को, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, सबको हम लोग सपोर्ट करें, ताकि इससे ही रोज़गार निर्माण होगा और रोज़गार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। और इसलिए रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमारा विकास की प्राथमिकता रहे, ये भी हमारी कोशिश है। तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप जो भी कुछ सवाल पूछेंगे उसके जवाब देने की मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Honorable Minister. Thank you very much for your address. आपके एड्रेस ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हमारे आंसर कर दिए। फिर भी आपका परमिशन होगा तो कुछ क्वेश्चंस रहे, बट उसके पहले द इंडस्ट्री जस्ट वांट्स टू इन्फॉर्म यू दैट अक्रॉस द कंट्री द होटल इंडस्ट्री हैज बीन इन द फ्रंट लाइन एज वॉरियर्स. We have given lakhs of rooms for quarantine purposes to all the state governments, especially in the metros, and millions of food packets have been given by the hotel industries. We just want to request that the government should recognize the industry as the real frontline warriors. And this ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद देख रहा हूँ सभी जगह पर होटल वालों ने अपने रूम्स दिए हैं और सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी किया है, काफ़ी जगह पर किया है। हमारे यहाँ भी नागपुर में वो प्राइड वाले भी बैठे, उनका भी होटल है, सेंटर पॉइंट का भी वो मिक्की ने होटल भी दिया, काफ़ी मदद की उसने, और सब लोगों ने होटल दिए हैं और काफ़ी लोगों ने मदद की है। तो मैंने ये देखा है, ये आई रिकग्नाइज एंड गिविंग माई स्पेशल थैंक्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स कि जिन्होंने सामाजिक दायित्व के भाव से इस कठिन समय में जो दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और सरकार इसको रिकग्नाइज कर रही है। Thank you, sir. Thank you. So I will request Mr. S.K. Jaiswal to put in your question. Jaiswal ji. Sir, from Northern India and Vice President FHRI. Sir, first of all, I'd like to thank you for taking service sector in MSME. This is a huge thing which you have done. So a great applause from all of us to you, sir. Then again, the second applause to you for increasing the limit of investment from 25 crores to 50 crores and 100 crores to 250 crores. One thing is this, sir, the RBI has also issued directions to reclassify according to your directions for 50 crores and 250 crores. But the only problem is coming is this. See, as per MSME Division Head Office Circular dated 27/5/35 and 3rd June, there was a eligible borrower means all business enterprises MSME accounts with outstanding loans only up to 25 crores up to 29th February 2020.
and annual turnover 100 crores, sir. So now a fresh circular has to be issued from MSME Ministry that according to the reclassification, the bank should allow this emergency credit limit guarantee scheme uh, of 23rd May 2020 for 20% of this. So this is a request from our side that directions from your ministry should go may go to the all the banks that they should honor the increase of 50 crores limit as investment and 250 crores considering the non-emergency credit limit, because they are saying that as per the circular of the ministry it is written 25 crores only, so we will give only 225 crores for plant and machinery, and most of the hotels they are not almost the 75, 80, 90% of the hotels, they are not able to become eligible on this माननीय मंत्री जी। कि पहली बात तो ऐसे है कि नई डेफिनेशन जो हुई है, थोड़ा डेफिनेशन भी एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस अलग अलग था, हमने दोनों को एक कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक सेक्टर किया है। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट थी 25 लाख, वो हमने अभी की 1 करोड़। टर्नओवर था 10 लाख, वो किया है 5 करोड़। फिर स्मॉल में इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़, वो की 10 करोड़। टर्नओवर था 2 करोड़, वो किया 50 करोड़। फिर मीडियम में इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ और वो किया 50 करोड़। टर्नओवर था 5 करोड़, वो किया 250 करोड़ और उसमें एक्सपोर्ट को इससे हमने एक्सक्लूड किया है। अभी आपका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा मैं ठीक समझ रहा हूँ, वैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला था कि ये जो 3 लाख करोड़ जो दिए थे हमने, उसमें ये जिनका टर्म लोन 25 करोड़ और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ है, उनको ये 3 लाख करोड़ वाले स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, ये पैकेज में डिक्लेयर हुआ था। तो पहली बात तो ये 20% वाला जो कोलैटरल फ्री एडिशनल लोन था, इसमें ये कंडीशन थी। अब बाद में काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आए थे। अब इसमें और एक ये कि हमने जो नई डेफिनेशन दी है, वो उन्होंने मुझे बताया था कि वेबसाइट पर और सब करने में टाइम लगेगा, तो 1 जुलाई से शायद उसका क्रियान्वयन होने वाला था। तो अभी मैं नागपुर में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, पर आपने जो प्रॉब्लम पुटअप किया हुआ है वो थोड़ा सा एक ईमेल मुझे डिटेल में भेज दीजिए। मैं राजगोपाल शर्मा दिल्ली में मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी है, अगर आप संभव हुआ तो दिल्ली में उनके हाथ में भी दीजिए, मेरा नाम बताकर ऊपर में लिखिए मैंने दिया है करके, और एक कॉपी नागपुर भेज दीजिए। मैं मेरे रिमार्क लगाकर उनको इंक्वायरी करने के लिए लगाता हूँ और इसमें क्या हो सकता है मैं करूँगा। आपके एसोसिएशन का दिल्ली में कोई पदाधिकारी होगा तो उसको, हाँ उसको कहिए कि हाँ, तो मेरे ऑफिस में जाकर राजगोपाल शर्मा से मिलकर उसके साथ डायरेक्ट बातचीत करके पूरा समझाइए और फिर मेरे से बात करिए जायसवाल जी। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वे आउट। Thank you. Mr. Nair, if you can now talk about the outreach to the industry. Nitinji, thank you very much for this video call. In fact, you're the only one in the Union Cabinet which has even taken interest in hotels and restaurants. So we are very disillusioned that not a word was mentioned about hotels or tourism by the PM or by the Finance Minister. So your announcement on MSMEs given us great relief for us, and we thank you for that, sir. नायर जी, एक थोड़ा मुझे आपको प्रश्न पूछना है। ये एमएसएमई में आने के बाद एमएसएमई के कारण जो इंटरेस्ट से लेकर जो बातें सबको बेनिफिट मिल रही है, वो बेनिफिट आप पूरे इंडस्ट्री को मिलेगा ना? I'm coming to that point, sir. The hotels are very capital intensive बनाने के लिए. So your limit of 10 crores and 50 crores is totally inadequate. Now, if you put a limit of 250 crores, we think the investment should be at least 150 crores. क्योंकि अपना ratio of investment or turnover बहुत ज़्यादा है hotels में. So we'll give you a representation, sir. We could kindly consider increase of that, at least in the services
sector. Otherwise, at a 50 crore investment, no hotel will do more than 100 crores or 150 crores. So that defeats the increase in the turnover limits. Also, when I spoke to you in Nagpur on your birthday, that time they only mentioned about the turnover. I think they introduced this investment afterwards, and then they explained to me that they want to link both investment and turnover so that traders don't claim benefits. So, but then there's no point increasing it to 250 when the investment is so low. And with 50 crores or 100 crores turnover, we can only, 100 crores investment, we can only do a turnover of 200. So I would like you to kindly consider that. Sir. Otherwise, 80% of my industry won't be able to utilize that. You are absolutely. I will look into it. Presently, in the scenario, it is difficult, but we will we will meet with you with your delegation. I understand your problem, but I am positive. But I will try to do something for that. I know Mr. A.K. Sharma, the PM, had introduced me to him regarding the project in Gandhinagar. So I know him. So perhaps I can directly send him a DO letter, sir, on behalf of the association. You can talk with Mr. A.K. Sharma. Is a good officer. Actually, previously he was in PMO. Now he is our secretary. My suggestion is you would discuss with him and give him all details and tell him my name also, that to discuss all this thing with him. Yes. He doesn't return my calls. That's the only problem. 100%. I will do it. Thank you. Thank you. Okay. Sir, the next round of questions are mainly ranging from implementation of your scheme by the banks. We have got many queries from members. So there are many issues on implementation part. And एक बात काम करना, वो जो चैंपियन करके पोर्टल है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट डाल देना. मैं कंप्लेंट शब्द नहीं यूज कर रहा हूँ, आपके ग्रीवेंसेस डाल देना. और हम लोग हर बैंक को फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी उसमें है, हम लोग चिंता कर रहे हैं. जिन आपके मेंबर को एग्जिस्टिंग स्कीम में बैंक ने कुछ कहा है और कुछ किया होगा वो चैंपियन में डालो. हम वहाँ से वेरीफाई करके उनको इंस्ट्रक्शन देके उसको रेक्टिफाई कर देंगे. Somaraju sir will quickly go with what your issue is with the honorable minister. Sir, can you hear me, sir? Namaste. Sir, a lot of our members are facing a problem with the bankers in terms of 20% of the working capital are existing monitoring period. Out of both of them, only one can be utilized by most of our members. So we request you to expedite on that and give proper instructions to the banks. सर, मैंने यही कहा कि जहाँ हमारे डिक्लेरेशन और पॉलिसी के मुताबिक बैंक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही या डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपकी तकरार एक चैंपियन करके हमारा पोर्टल है, अभी तक हमने 60-70 हज़ार प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए हैं. तो आप उसके ऊपर आपके प्रॉब्लम डाल दीजिए. वो एक प्रॉब्लम का स्क्रीनिंग होता है और उसके बाद में भी आपको नहीं हुआ तो फिर मुझे रिप्रेजेंट करिए और मेरे पास भेज दीजिए. मैं अभी अगले सप्ताह दिल्ली जाने वाला हूँ, तो दिल्ली भी मिलिए और मुझे दीजिए. मैं इसके डिटेल में जाकर क्या क्या प्रॉब्लम कैसे पॉजिटिवली सॉल्व हो सकते हैं उसकी कोशिश करूँगा. बेसिकली हमारा ये कहना था सर कि आपकी जो रिलीफ था दिस वाज टू हेल्प अस रीस्टार्ट एंड वर्किंग कैपिटल के लिए. बट बैंक्स कह रहे हैं कि अगर आप मॉरेटोरियम ले रहे हो तो हम आपको ये रिलीफ नहीं देंगे. अगर आप मॉरेटोरियम नहीं ले रहे तो सर, मेरे मुंह से बैंकों के खिलाफ कुछ निकलेगा तो कारण न होती है मीडिया फीडिया उल्टा तिल्टा करती है. मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूँ कि आपके ग्रीवेंसेस को आप डायरेक्ट भेज दो, मेरे पास आएगा. मैं फाइनेंस सेक्रेटरी जो बैंकिंग का है वो आते हैं, हम एक एक इशू में क्यों रिजॉल्व नहीं होते उसमें देखते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी इंस्ट्रक्शन देते हैं. तो आप एक बार उसको ग्रीवेंसेस में डाल दो और उसमें भी नहीं हुआ तो मुझे मिलो. आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वे आउट. Jain sir, you can quickly go on. ये और है. जैन साहब बोलिए. जैन साहब बोलिए. क्या जैन साहब, यू कैन गो अहेड. सर, माननीय मंत्री जी, आपने जो समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार.
हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की मैन पावर और इलेक्ट्रिसिटी दो, अब हम ये नहीं चाहते कहना कि भाई पावर कंपनियां हमको कम कंसेशन दे में, परंतु बहुत सारे स्टेट इंडिया में बाहर से सोलार पावर या विंड मिल की पावर खरीदने की परमिशन नहीं देते, और अगर देते तो बोलते मिनिमम 1 मेगावाट होना चाहिए। अगर हमें वो सिर्फ परमिशन देवे तो गवर्नमेंट भी कुछ लूज नहीं करेगी और हमारी इंडस्ट्री को कंसेशनल बेसिस पे पावर मिलेगा। तो क्या है कि हमारे लोगों का कास्ट बच सकता है, ऐसी टफ टाइम में हम लोग अपने कास्ट कम कर सकते हैं पावर का और सर्विस दे सकते हैं। सर दूसरा एक छोटा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने सभी इंडस्ट्री ने क्वारंटाइन को बहुत सर्विस दिया और सर्विस दिया जान हथेली पे रख के सेवा की लोगों की, लेकिन आपकी अपनी राजधानी दिल्ली में भी क्वारंटाइन होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, बहुत वेलकम, हम लोग वो भी सेवा देने, गैस नहीं है, 1 महीने से 4 रूम या 5 रूम के गैस लगा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके बैठे हैं और ये 40-45 ऑफर कर रहे हैं। सबका निवेदन है कि जो जरूरत है उतनी होटल और बाकी होटल को छोड़ देवें तो वो कम से कम थोड़ा बहुत और अपनी खर्चे मीट आउट कर सके। तो पावर और ये चालू करने की 2 ही निवेदन आपसे हैं। सर आप सब एरिया में आपका बहुत नॉलेज है और आप हम डेफिनेट बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें आशा है कि आप इस पे हमारे लिए सहायता करेंगे। धन्यवाद। हेलो जैन साहब मुझे दे दो, और ये जो पावर का है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है सब्जेक्ट। इसमें कैसा है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स है वो काफ़ी लॉसेस में भी है, तो वो नहीं चाहते कि अपने कस्टमर को छोड़ना। पर आप मुझे लगता है कि आप खुद के होटल के ऊपर में अगर आप सोलर सिस्टम बिठा लोगे तो शायद वो अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ जगह पर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर यह करने से भी आपका बिल काफ़ी कम हो सकता है। या आपको किसी इसमें आप सोलर पावर में या किसी में आपको खुद को उसमें जाना पड़ेगा, उतनी इक्विटी लेकर फिर आप उतनी पावर यूज़ कर सकोगे। थोड़ा सा सरकार में ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ परस्यू करने का विषय है। ये बात ज़रूर है कि इससे पावर की आपकी कॉस्ट कुछ कम हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना है, पावर कॉस्ट कम करना है, उसके सिवा वायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। एक बात आपने जो कही है दिल्ली में बड़े होटल्स के बारे में, तो वो थोड़ा मुझे लिख कर दीजिए, ये दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के साथ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है? स्टेट गवर्नमेंट। अभी तो ज्वाइंट कमेटी मिल रही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ये काम कर रहे हैं। और मुझे आप एक बार एक डिटेल में मेरे पास ईमेल भेज दो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम द ताज ग्रुप, Mr. Puneet Charwal from the Taj Group. The last question before we end the session. I really like the way you ended your speech. That हमारे में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो दिस टू शैल पास। सिर्फ 2 ही आपकी बातें सुनते हुए सिर्फ 2 पॉइंट्स दिमाग में आए। नंबर 1, हमारी इंडस्ट्री आपको बहुत हेल्प कर सकती है हाईवे होटल्स रेस्टोरेंट्स को बनाने में, अगर इसको ठीक तरीके से लॉन्च किया जाए और इसमें जो लैंड जो मिलती है वो नॉर्मल इंटरनेशनल टर्म्स पे दी जाए। हमारे ये कुछ जो टेंडर प्रोसेसेस हैं और इसमें ताज को काफी तजुर्बा है, मानसिंह के बाद कनॉट के बाद वो काम ठीक से नहीं करते, तो आई थिंक उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की जाए तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी कंपनीज के लिए। एक सेकंड, आपका जो पॉइंट है जो आपने बोला डॉलर इनकम और डॉलर लोन में, सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर आरबीआई डायरेक्ट इंडस्ट्री को लोन दे 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन पे, तो ये बीच का लूप खत्म हो सकते हैं। तो उससे इस फेज में आने वाले जो 2-3 साल है, जैसे हम सर्वाइवल कहते हैं, उसमें काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब वो रिपो रेट प्लस 200 बेसिस पॉइंट हो या 250 हो, उसमें काफी फर्क पड़ेगा।
एंड फाइनली पर्सनल नोट पे नागपुर में एक ताज की जरूरत है, जब कभी आपको टाइम मिले तो बताइए, हम एक ताज होटल नागपुर में खोलना चाहते हैं। और ये आरबीआई डायरेक्ट लोन नहीं दे सकती, क्योंकि नहीं तो आरबीआई ने शुरू कर दिया काम तो बैंकों के दुकान ही बंद हो जाएंगे। आरबीआई नहीं करेंगे। देखो, मैं आपको जाते जाते मैंने बड़ा अच्छा इशारा किया है, आप सब लोग बैठकर 5-5, 10-10 लाख रुपए एक आधी पुरानी एनबीएफसी खरीद लो, एनबीएफसी फॉर होटल वालों की, और आप उसके साथ फॉरेन फंड के साथ टाइप करो और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो, ऑटोमोबाइल में टाटा की आपकी फाइनेंस कंपनी है, लेलैंड की, सबकी अभी ऑटो फाइनेंस कंपनी, उनके बिजनेस के लिए इसका फ़ायदा होता है। आप थोड़ा सा अलग कुछ तो भी इनोवेटिव सोचो। मुझे लगता है कि एनबीएफसी को अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करके ज़्यादा कुछ सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। और आपका जिनका टर्नओवर डॉलर में है उसमें तो मुझे लगता है कोई वे आउट निकल सकता है। बाकी क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे क्या है कि अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव मॉडल्स जब हम निकालते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगी तो सब लाइन पे चलेंगे ठीक से। अभी जिनकी मोनोपोली होती जाती है तो फिर उनके टर्न पर ही हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर ये रिजर्व बैंक में अगर इसके बारे में आप कोई नीतिगत फैसला करके आपको फ़ायदा हो सकता है, ऐसा कुछ होगा जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। अभी जैसे एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% आ सकता है। आपके भी सेक्टर में आप देखिए, नेचुरली अब इस समय दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग एंड डिसगाइज, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके सामने भी समस्या है, और जो भी कुछ रिटर्न्स का प्रोपोर्शन है उसमें इंडिया ये अच्छी डेस्टिनी है। तो आप इसमें देखिए कैसा है, रिजर्व बैंक से डायरेक्ट नहीं होगा, पर रिजर्व बैंक के नीतियों में कोई बदल करना है जो होटल इंडस्ट्री को उसके कारण फॉरेन कैपिटल लाने में आसान होगी, कहीं लेना है तो कोई प्रपोजल होगा तो मुझे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा, चर्चा करूंगा। Mr. Kohli, if you can just end this बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आपके आने का और हमको संबोधित करने का और हमें मार्गदर्शन करने का। आप अप्रिशिएट करेंगे कि हम आपके पास क्यों आए हैं, क्योंकि सिर्फ आपकी ही मिनिस्ट्री है एक जिन्होंने हमें किसी काबिल समझा, और कुछ थोड़े बहुत जो आपने हमारे लिए एमएसएमई में किया वो किया। हम आशा करते हैं कि आप हमारा मैसेज ले जाएंगे और दूसरे मिनिस्ट्रीज को भी, जैसे आपने हमें हैंडल किया है और हमें आश्वासन भी दिया है, वैसे अगर दूसरी मिनिस्ट्रीज भी करें तो हम बहुत बहुत धन्यवाद होंगे। इसी आपका धन्यवाद करूंगा, और आपकी मैसेज जरूर हम याद रखेंगे कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिविटी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इसी बात के साथ मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हम मिलते रहेंगे। जय हिंद।